ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः. Yesterday we have finished up to 59, but English version was not taken. So let us have a quick readout at English stanzas and then we'll proceed further. Sri Ganeshaya Namaha, Sri Saraswatye Namaha, Sri Gurubhyo Namaha, Sri Kuladevataya Namaha, Sri Sitaram Chandrabhyam Namaha, Sri Sadguru Sai Nathaya Namaha. Om Sri Sai Nathaya Namaha. Salutation to Lord Ganesh, Saraswati, Sadguru Dev, deity of family deity, and Sri Sitaram Chandra Prabhu and Sri Sadguru Sai Nath. In the previous chapter, we have heard about the kindness of Sainath. Now, in this chapter, I shall tell you the story as to how Sai Baba conveyed a great message and teaching through the humor and in a very lighter way. When I say I am telling you the story, that is also my pride. We should be humble at the lotus feet of Sai, our spiritual master, with humbleness alone. The story will become lucid and will flow easily. Let us listen to it. Great person is like open, clear, pure sky. He is free of all likes and dislikes. He is always with pure and kind heart. Praying to Lord Sai, praising him is one sure short way of one's upliftment. It helps us to be in line with our true self and leads to the quietude of mind. One who is concerned about his own well-being must have interest in listening to the stories of great people. The act of listening will help him to go ahead on the path of liberations and he will gain bliss. By listening to these stories, one will surely be liberated. His worldly fears will disappear. The listeners will gain eternal bliss and will reach this goal of liberation. Sainath is omniscient and omnipresent. He knows everything as he resides in the heart of all. He knows he knows the love and respect devotees have towards him. In this incarnation, to spread the message of love and guide the disciples on the path of devotion is the very purpose of this life story. His life means Bhagwan's life story. Sai Bhagwan gives the wisdom to decide what is right and wrong. He is the inspiration behind the discriminatory intellect, which helps us to take right decision. He awakens this power within us. Now I shall explain his teaching as per my understanding. His teachings are helpful and will lead us on the path of liberation. When a man acts as if his body, it is his ignorance. Physically, he may not be blind or might might blind, but he behaves as though he is, as though he is. He is not aware of what is good for him and what can lead him to the path of spirituality. This physical body is perishable. There is no guarantee even for the next moment. To understand the true meaning of life, how will we get permanent happiness? Please
Pay attention here. I beg you to listen to these teachings. Everyone enjoys humor. Baba teaches the lighter way, highest learning about life, and in his playful way or jovially way. People do not enjoy if they are made fun of. They are made fun of. But if Baba cracked a joke or two, they enjoy it. In fact, they are awaiting for their turn and are eager that Baba's sense of humor is aimed at them. People do not enjoy if fun is made at their cost, but if done by Baba, they really enjoy it. And if this humor is accompanied by drama and action created by Baba, then it is the best thing that would have happened. With them, through these joyful incidents, Baba would impact the great learnings. In his natural love and novel way, with a smiling face and with the chuckle in his eyes, Baba would dramatize the situation and he would add shades of humor and fun in such a way that everyone would enjoy it and would want more of it. Now, I will narrate one incident which is full of fun and novelty. In the joyful way, Baba would impact the teachings and help the disciples to move forward on the path of spirituality. Please listen to it very attentively and with reverence. There is a weekly market organized in Shirdi on every Sunday. Various small vendors would set up their stalls in the market on the roadside of main road. On both sides of the road, vendors selling vegetables, oil merchants would set up their shops and carry out the buying selling activities. On one of the Sundays in the afternoon, I was sitting near Baba, pressing and massaging his feet. In Baba's Masjid, there is generally a good crowd in the afternoon, and it is Sunday, holiday of the market day, that day there was a very big crowd. I was sitting on the right side of in front of Baba. I was pressing his legs and was also busy chanting Lord's name. On the left hand side, Madhava Deshpande was sitting. On the right was Vaman Rao Gonkar and the left Srimanta Bapu Sabhuti. Everyone was busy doing his own duties as to service to Sai Baba in their own way. Kakasaheb Dikshit was also sitting there. Madhava looked at me and had a hearty laugh. He asked, Anna Sahab, what are these seeds, chickpeas, clinging to your clothes? Later on, Madhava took out some peanuts. It's not peanuts. It is chickpeas actually, from my coat. When he moved his fingers across the fold of my coat, some more, chickpeas nuts were down. When he checked some chickpeas, sugar balls fell down. It's not sugar balls, it's a wrong translation. Chickpeas. When he collected all those, they worked out to be around 25 in numbers. So Baba got a reason to pull my legs. He started inquiring as to from where did these roasted chickpeas appear. Everyone started applying his mind and started giving the reasoning. Everyone wondered as to how they would fall off from my coat. The chickpeas come out of the fold of my coat sleeves. Everyone was wondering as to how the fold of sleeves could hold around 25 chickpeas. In fact, from where did they come? Everyone was surprised. I was doing my services to Master by chanting
the Lord's name, and suddenly the chickpeas appeared. I was wondering as to how this whole episode have happened. I was doing my services for quite some time, but in all that time, the chickpeas never fell down. Everyone wondered about the chickpeas staying in the sleeves fold for such a long time. When everyone was wondering about it, Baba commented, "Please listen." Baba had an amazing way of teaching method. He would see what is suitable for the devotees and would employ that method of advising. I have not seen anyone in anyone else or anywhere else using various techniques of teaching so skillfully. He had a different method of advising. Baba explained, he has got the bad habit of eating alone. Today being a bazaar day, market day, he must have got these chickpeas and he's relishing and hugging them alone. It is not a good habit to eat alone without sharing with others. But I am aware of this, and the chickpeas are the proof for it. Now, he may be pretending to be surprised, but it shows his habit. Listening to Baba's comments, I said, I do not like to eat alone without sharing it with others. My mind will never agree to eat something like this and myself alone. So there is no question of me bringing the chickpeas and eating it alone. Baba, till date I have never visited the market, and if I have not visited the market, how come I bring the chickpeas and eat them? Someone may enjoy eating alone and may have such a bad habit, but I cannot eat without unless I ensure those along with me have also for sure. Now, just look at the amazing techniques employed by Baba to advise me. Let us listen carefully to what he said and ensure that my dedication and devotion at his feet enhances. Baba commented, you offer to someone who is around you. But what about those who are not around you? Do you still remember me? I am there with you at all the times. Do you offer me one bite? He parted his great knowledge through these incidents of chickpeas. All those who eat food without offering to the five types of fires, etc., they are not worthy of consuming such food. Such food is spoiled, poisonous, and should be avoided. It cannot be poisonous, but it is not. It is impurity. It is impure. This may seem to be simple principle, but one who follows it after understanding will know its importance. As per this principle, eating for the taste of food and for enjoyment becomes secondary. It guides us about the pleasures experienced through five sense organs. One who derives pleasure by indulging in the play of sense organs will have no future on the path of liberation. But if one can control the play of these sense organs, he will move ahead on the path of spirituality. In Kantopanishad, there is a verse which says, when one has a control on five organs, minds, memory, and intellect, one can reach a state of oneness. This essence which is started this essence which is stated in our scriptures was explained by Baba so very easily through the incident of chickpeas. Along with the beautiful explanation, Baba guides and advises us as to how the speech, touch, sight, and smell are also connected to the reality. When your mind, intellect, and sense organs crave for pleasure, then remember me and surrender them to me. Once you do that, the desire of enjoyment will not arise in you. Being able to keep the sense organs away from the desire to
to enjoy the quite impossible. Enjoy is quite impossible. Even if you surrender all your sense like speech, form, smell, or touch at the feet of the teacher, the attachment will still continue. If we desire for fruit of action, then let it be for me. If you get angry, let it be directed towards me. Surrender your sense of pride and ego to me. Surrender your devotion and gratitude at my feet. Meaning to say, direct all your energy, okay, this what? Energies towards me. You may experience sense of attachment, anger, false pride, jealousy, and feel you have no control over them. Direct all these feelings towards me. Slowly and logically over the period of God, the God Sri Hari will destroy all these ill feelings. He will like your, he will take you beyond the pangs of these negative emotions. Not only that, all these emotions come and finally culminate in me and they become part of me. The final destination for these things to end it with me. If you follow the path of study and behave accordingly, slowly all these desires, attachment, greed will become weak and finally they will all get vanished. Your mind will then will be free and unattached, all these senses. The master is always with you. If you remember and recognize his presence at all times, so the so-called six enemies, vice, attachment, greed, delusion, pride, and jealousy will not trouble you. They will be destroyed. Once your mind and thinking is rooted in this routed in this belief, you will know the true nature of the bondage created by action. You will know that even these negative feelings, thoughts, attachments are expressions of the great master or great teacher. These negativities will then not exist because they all culminate at the feet of the master. You begin the desire to enjoy. Even if such a thought occurs in your mind, remember that Baba is very close to you and he is watching all at all your thoughts and actions. These thoughts of enjoyment will just disappear and you will be saved from such misdeed. The thought belief that the teacher is constantly observing us, if it is established in the seeker's mind, it will become free from all unwanted desires. In fact, the addicts will leave their bad habits. The disciples will leave their bad habits. The disciple will never be interested in doing those wrong actions. Slowly by diligent studies and efforts, he will be able to free himself from the reins of attachment. It is important that one puts in his sincere efforts to have a better control on the sense organs. The origin of this knowledge is our scriptures, Vedas. Once you control these senses as per the guidelines given in our scriptures, this will never be there will be never be a problem of wrong behavior or wrong actions. Once you develop this habit of having a better control on the sense organs, the desire for enjoyment weakens and then disappears slowly. You develop devotion towards the teacher or master and enjoy those thoughts. This deed of devotion will then sprout and lead you to the on the path of knowledge. Once the knowledge starts growing, then the sense of duality, attachment towards the body will disappear. And this will take you to true knowledge, permanent happiness, and liberation. Om Sai Ram.
Actually, it was so lengthy. We should have broken into two parts to separate. So it becomes overdose. Now let us start with I see. Will repeat one or two stanzas. I see savai lagata mana क्षीण होती विषय कल्पना आवड़ी उपजे गुरु भजना शुद्ध ज्ञाना अंकुरये शुद्ध ज्ञान इट गेट्स को अंकुर आते हैं, टेंड्रिल आते हैं। गुरु की भक्ति में हमें इंस्पायरेशन मिल जाता है। ये अपने शरीर को एक हैबिट लगा के लेनी पड़ती है। तंबाकू खाने की हैबिट कैसे जल्दी लगाते हैं, टोबैको है कि नहीं, विषय कल्पना की कैसी लगाते हैं, वैसे गुरु भक्ति की भी, गुरु आराधना की भी हमें क्या करनी चाहिए, आदत लगा लेनी चाहिए। आदत। शुद्ध ज्ञान लागता वाड़ी देह बुद्धि जी टूटे बेड़ी दे बुद्धि दे अहम ब्रह्मी बुरी सुख निर्वड़ी मगलाए। शुद्ध ज्ञान, ये शुद्ध ज्ञान का जो पौधा है वो आप लगाए और उसको अगर अंकुर आ जाते हैं और वो ग्रो होने लगता है तो आपके अंदर का ड्वेलिटी, देह बुद्धि, ये सब वैनिश हो जाता है स्लोली स्लोली। शुद्ध ब्रह्म ज्ञान हाथ में आता है और शाश्वत सुख, जिसको मोक्ष सुख बोलते हैं, परमानंद सुख बोलते हैं, परमानंद बोलते हैं, वो आपको प्राप्त हो जाता है। तरी हा देह क्षण भंगुर देख तरी हा परम पुरुषार्थ साधक दो प्रत्यक्ष मोक्षामुनादिक की भक्ति योग प्रदायक। ये जो देह है ना, जरूर के इतने ही लाड प्यार करो, किसी लिए मालूम है, लेकिन उसको निगलेक्ट भी मत करो, उसका संरक्षण करना आपका अपना काम है। क्यों है? ये टेम्पररी शेड है, ये टेंट है और टेंट में हम रह रहे, एक्सकर्शन में या इधर उधर कहीं जाते हैं ना, तो एक क्षण मात्र के लिए हमें ये टेंट लगाया हुआ है, लेकिन यही एक साधन है जिसे हमें परमार्थ की प्राप्ति होती है। हमें परमार्थ मार्ग में चलने के लिए देह की आवश्यकता है। जो मोक्ष से भी ज्यादा अहमियत रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति इस देह के माध्यम से ही होगी। भक्ति का योग और भक्ति का योग प्रदान करने वाला यह देह ही है। देह ही हमें भक्ति मार्ग पर ले जाने वाला है, यही एक साधन है, माध्यम है। मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति की जरूरत है, और भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं बोलूंगा, इसीलिए भक्ति करनी की नहीं जाती। बाबा हमें इंस्पायर करते हैं उनकी भक्ति करने के लिए। तो भक्ति भावना प्राप्त करने के लिए, भक्ति की भावना हमें देने वाला भी, या हमें हमारे जीवन में जागरूक करने वाला वो भी कौन ही है? कौन है? वो देह है। चारी पुरुषार्थाच्या वरी या पंचम पुरुषार्थाची पायरी काही न पावे या योगाची सारी सरी अलौकिक परी भक्तीची। अभी 4 पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें पहले जो 3 है ये साधन है, धर्म अर्थ काम, और मोक्ष जो है वो साध्य है। लेकिन ये 4 भी पुरुषार्थों के ऊपर भक्ति ये 5वां पुरुषार्थ है, और सबसे श्रेष्ठ दर्जा का है। उसका दर्जा बहुत ऊंचे दर्जे का है वो।
भक्ति यही पांचवा पुरुषार्थ है। भक्ति प्राप्त करने के लिए, और भक्ति योग अपने जीवन में जब आता है, उसकी तुलना वो किसी और से हो ही नहीं सकती। ये जो साधन हमें मिला है भक्ति का, ये जो भक्ति योग है, ये भक्ति योग की ये किसी अन्य माध्यम से, साधन से तुला नहीं जा सकता। ये भक्ति के अलौकिक, बहुत ही निराली, आला, ऐसी ऐसा अजूबा है जिसे भक्ति प्राप्त हुई, वो भक्त कहलाने के लायक रहा, हो जाता है, वो भक्त कहते हैं। और ये आप सेल्फ डिक्लेयर करके नहीं होता, आपका वजूद, आपका एग्जिस्टेंस, आपका फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो औरों को ध्यान में आ जाता है, हाँ ये भक्त है, ये अध्यात्म मार्गी है। ये उसके बिहेवियरल पैटर्न और बिहेवियर से, आचरण से पता चल जाता है। सो पीपल कंसीडर हिम, हाँ साई भक्त है। लोगों के नजरों में आया हुआ ये बदलाव, यानी आपको भक्ति का साधन प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है ना। गुरु सेवे ने जो हुई कृतार्थ, तया आकले हे वर्म यथार्थ। भक्ति ज्ञान वैराग्य स्वार्थ, तोची परमार्थ पावेल। गुरु सेवा, गुरु भक्ति, गुरु भजन, इसमें जो व्यस्त रहता है, लीन रहता है, तल्लीन रहता है, गुरु भक्ति करने से ही उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है, फलद्रूप हो जाता है, फलदायी हो जाता है। उसी को उसके जीवन का यथार्थ ज्ञान और जीवन का सही मर्म समझ गया है, और उसी को वो समझ जाता है, वही समझ जाता है, बाकी कोई नहीं। जो गुरु भक्ति, गुरु सेवा और गुरु भजने में व्यस्त है, वही ये समझ जाता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, निज हित, ये जो परमार्थ मार्ग की समझने के लिए, परमात्मा मार्ग को समझने के लिए, आकलन करने के लिए, ग्रास्पिंग करने के लिए बहुत जरूरी है। और ये जरूरी जो है, जिसको जो वो जरूरी, ये जिसको वो मिल गया, उसी को परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा परमेश्वर उसे उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। तो लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? गुरु भक्ति, गुरु ज्ञान। गुरु आणि देवयात भेद पाही जयाचे चित्त, ते अखिल भागवतात नाही तो भगवान तो देखिला। जो गुरु को और भगवान को अलग समझता है, जिसको भेद करता है, नहीं गुरु गुरु है, भगवान भगवान है, ये तो ऐसी बात हो गई कि पूरा भागवत पढ़ लिया लेकिन भगवंत को नहीं समझा, भगवंत उनको उसकी अनुभूति प्राप्ति नहीं हुई, भगवंत क्या है वो समझा ही नहीं। वो मराठी में एक माने क्या है, पूरा गीता उसके पास, गीता पूरी गीता पढ़ो और वो समझ में नहीं पाया कि भगवान श्री कृष्ण कौन है। ऐसी बात हुई ना। यानी गुरु और भगवान इसमें फर्क नहीं है जरा भी, एक ही है। गुरु यही भगवान है, भगवान यही गुरु है। इसमें जो भेद बुद्धि करता है या वो दो अलग समझता है, उसको तो भगवान समझे ही नहीं। कितने भी स्क्रिप्चर्स पढ़ो, कितने भी धर्म ग्रंथ, होली ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ पढ़ो, आपको भगवान ही नहीं, भगवान का सही स्वरूप समझ में ही नहीं आया। वाचिले अखिल रामायण, अखिल रामायण ठाविन रामाची सीता कौन, ये एक्चुअली मुझे पहले याद आया था, लेकिन ये पहले वो भी है इधर, इसीलिए। सांडुनिया द्वैत दर्शन गुरुदेव अभिन्न जानावे।
आखा रामायण पढ़ लिया और बोले राम की सीता कौन है, क्या रिलेशन है दोनों का। अचरज भरी बात है नहीं, वैसे ही ये मिसाल है, गुरु और भगवान जो अलग समझता है वो राम की सीता कौन है, राम की सीता कौन। इसीलिए ये द्वैत भाव, ये अलग अलग दोनों की आइडेंटिटी, ये भूल जाना ये दोनों एक ही है। गुरुदेव अभिन्न जानावे, गुरु और देव ये दोनों एक ही है, भिन्न भिन्न नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये पहले समझ लीजिएगा। गणता गुरु सेवा निर्मल, होईल विषय वासना निर्मूल, चित्त होईल शुद्ध सोज्वल, स्वरूप उज्ज्वल प्रकटेल। शुद्ध भाव से, शुद्ध अंतकरण से, निर्मल अंतकरण से गुरु भक्ति अगर अपने हाथ से घटित होती है या होती है तो विषयों के तरफ अपनी आसक्ति, विषयों के तरफ का अपना आकर्षण, विषय सेवन करने की जो अपनी इच्छा, ये पूरी धीरे 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 विनाश हो जाता है उसका। अपना जो चित्त है, अपना अंतकरण है, शुद्ध और पवित्र पावन हो जाता है और भगवान के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान होता है। यथार्थ स्वरूप क्या है? गुरु यही भगवान है, भगवान यही गुरु है। असो इच्छा शक्ती होता प्रबळ, फुटाने बाबांचे हात जांभळ, याहून विलक्षण करिता खेळ, त्या काळ वेळे लागे ना। अभी चने जो आए, वो जो कोट उन्होंने पहना था उसके सिलवटों से 20-25 चने अब तक पाद संवाहन कर रहे हैं, यानी हाथ पैर दबा रहे हैं, मसाज कर रहे हैं, कितने देर से वहां बैठे हैं, तब तो वो नीचे आए कैसे नहीं? 20-25 हो सकता है कि ये प्रकृति के नियमों के अनुसार तो इम्पॉसिबल है। तो ये करने कराने वाले कौन है? अब तक उसको बराबर वहां धर के रख दिया है, उसको चिपका के। जब ये ज्ञान देने की बात आ गई, वो धीरे से सिलवटों से नीचे गिरने लगे। यह आश्चर्य की बात है। और ये दूसरे कुछ नहीं है, नटनाटकी साई माउली, गुरु माउली, इन्होंने ये तय करके, इन्होंने ये घटित करवाया है, ये लीला उन्होंने रचाई है। उनकी इच्छा थी, ये तो चने यहां सिलवटों से प्रकट कर रहा है, इनके तो बाएं हाथ का खेल है वो। अरे इससे भी कई विलक्षण, बड़े अजीबो गरीब अजूबे बाबा करते हैं, लीला बाबा करते हैं, रचाते हैं। तो उनको तो चुटकी भर में वो चने यहां प्रकट करवाना उनके लिए बहुत बड़ी बात है क्या? क्योंकि इस प्रसंग के माध्यम से वैश्वदेव जो हमें ये संसाधन की आपूर्ति करता है, ये अनाज पानी वगैरह सब, ये ऋतु, ये कालमान, ये वर्षा, ये ग्रीष्म, ये जो अलग अलग जो ऋतु हैं जिससे हमें अनाज की प्राप्ति होती है, ये कौन करता है? ये भगवान करते हैं। और भगवान जो हमें ये प्रदान करते हैं, अभी हम तो भगवान से हैं, हम पृथ्वी के अधीन है, हम अलग से, हम तो कोई क्रिएट होता है क्या? जो भी संशोधन होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेंटर बोलते हैं, क्रिएटर नहीं। क्रिएटर तो वही परमात्मा परमेश्वर है। उसने तो अभी मेरे ख्याल से 10-15% भी अपनी एनर्जी के जो सोर्सेस है या एनर्जी के सिद्धांत अभी ओपन नहीं किए हैं। जिस दिन ये सब करेंगे तो क्या बवाल करेंगे, बिकॉज ह्यूमन इज गोइंग टू मिस यूटिलाइज इट, एंड वो खुद ये ब्रह्मांड की क्षति कर देगा, क्षति कर देगा। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं ना, मंकी के हाथ में पलीता। इसलिए भगवान ने सृष्टि रचाने से कलयुग के 28 युग तक अभी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% ही उनकी जो फुल एनर्जी है, तो भी हम कहां तक पहुंचे हैं? अंतरिक्ष तक पहुंचे हैं, हम पहुंचे हैं एटॉमिक एनर्जी तक, हम पहुंचे हैं
अंतर ये तुम्हारे कम्युनिकेशन में, लेकिन उसका हम यूज क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए। देखिए साइबर युद्ध या जैविक युद्ध, ये क्या चल रहा है, ये जो साइबर अटैक है, ये तो सीधा सीधा टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है। ये जैविक युद्ध क्या है, आपको क्लोनिंग का नॉलेज का भगवान ने प्रदान कर दिया, आपने बवाल खड़ा कर दिया। इसीलिए धीरे धीरे हम विनाश की तरफ प्रवास कर रहे हैं, विनाश की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और ये जो चीज है, ये बाबा ने पहले ही जीवन के 5 सूत्र बताए उन्होंने। गरीबों की सेवा, पीड़ितों की दवा दारू के माध्यम से सेवा, पेड़ लगाना, भक्ति मार्ग और भक्ति के सही मार्ग, ये समझ। अन्नदान, देखिए बाबा ने ये सब अपने जीवनी में, अपने चरित्र में, जब आप उनका चरित्र देखेंगे तो ये 5 मेन सूत्र है। अन्नदान, बाबा अन्नदान करते, सबसे पहले तो पेड़ लगाए, एक हरी भरी हमारी जो है, ओम साई राम, आयुष्मान भव यशवंत भव जयवंत भव, आयुष्मान भव यशवंत भव जयवंत भव। ये जो हरी भरी जो हमारी धरा है, ये सुजलाम सुफलाम जो धरा है, पेड़ काट काट के हमने विनाश की कगार पर हम खड़े हैं। तो पहले बाबा ने क्या किया, जैसे अवतार कार्य का आरंभ हुआ, पहले लेडी बाग का निर्माण किया, उसके बाद हकीमी की, अन्नदान किया, गरीबों की सेवा की, सेवा, और बाद में बताए भक्ति के सही माने, यानी धर्म, धर्म ये मैनमेड धर्म में आप इस जरा भी विश्वास न रखते हुए, एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है और वो है मानव धर्म, सबका मालिक एक है। ये 5 सूत्र भी हम हमारे साई भक्त होने के नाते, मैं आपको आज ये बोलता हूं, पहले कितने लोग ऐसे हैं यहां, जस्ट कन्फेस, कितने पेड़ लगाए आप लोगों ने, सोचिए। भक्ति बाबा की करना, यानी ये पंचसूत्री पहले आचरण में लाना। कितने लोगों की मेडिकली और इसमें सेवा की है आपने, कितने लोगों को अन्नदान करवाया है, कितने गरीबों की, उसकी जरूरतमंद लोगों के, डाउन ट्रोडन लोग हैं जो जरूरतमंद है, उसकी मदद की है। और बाबा की टीचिंग समझ के भक्ति मार्ग पर चलने का प्रयास कितने लोगों ने किया है। लिसन, ये सिर्फ अपना वो आचार नहीं है, या अध्यात्म बने, बस अच्छा लगता है, सुनने को अच्छा लगता है, दिल बहल जाता है, नहीं। टेक इट सीरियसली, इट इज ए essential, unavoidable and must part of life. रोजमर्रा के 4 काम बाजू में रखो ये पहले, क्योंकि यही एनर्जी सोर्स है। यकीन मानिए, यहां आप अगर यश हासिल करते हैं परमार्थ में, आपका जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है वो भी सक्सेस हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। Those people who are successful in their spiritual life, they are successful in their materialistic life also. Yes, get this. केवळ पोटाची आवडी, ऐंद्रजाली लौकिकी गारोडी, फिरवून भारली हाडाची कांडी, पदार्थ काडी माने तो। अब इंद्रजाल, वो जादू टोना का एक शास्त्र है, इंद्रजाल बोलते हैं उसको, जादूगर भी बोलते हैं। गारोडी यानी जादू टोना करने वाला, कोई तंत्र मंत्र के हदर से कुछ हम पर, कुछ अघोरी विद्या के माध्यम से हमको कुछ करने वाला। तो ये जादूगर जो है या गारोडी जो है,
ये जो मंत्र तंत्र तंत्र विद्या से अपने इंद्रजाल के शास्त्रों का आधार लेकर मनमान वो ये निकालता है, पदार्थ निकालता है। हमारे बाबा के पास भी एक ऐसे तांत्रिक आए थे जिनकी समाधि इधर पूना में है, कुशाभाऊ। कुशाभाऊ जो है बाबा के बहुत बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। ये तंत्र विद्या में माहिर हो गए थे। ये बाबा के पास एक बार गए और देखा, वो हवा से पेड़ा निकालते थे, हवा से अनाज निकालते थे, वो तंत्र विद्या उनको आई थी। जब बाबा के पास गए तो बाबा ने पान खाके या कुछ ऐसा खाके थूक दिया था। कृष्णा मामा ने, कृष्णा भाऊ ने इमीडिएटली वो चाट लिया। जैसे चाटा, उनकी ये जो इम्प्योर विद्या थी उनके से निकल गई और वो एक तांत्रिक से, एक करनी धरनी करने वालों के से एक अच्छे भक्त बन गए। मंत्रों तंत्र का आधार छोड़ दिया उन्होंने और मंत्रोपचार कर दिया। उन्होंने खुद ये नैरेट करके रखा है अपने नरसिंह स्वामी जी को। उन्होंने जो मुलाकात दी थी उसमें लिखा हुआ है। यह पर्वती एक दत्त मंदिर है, पर्वती के जब बस नीचे चले वहां कुशाभाऊ की समाधि है। ये तांत्रिक कुछ भी कर सकते हैं और वो अपने पेट के लिए करते हैं। वो अपने अघोरी विद्या के प्रभाव से कुछ हड्डियां घुमाता है, कुछ वो स्कल लेता है, कुछ जादू टोना करता है, लेकिन आखिर में वो क्या है, भाई मैं पेट के लिए कर रहा हूं, मुझे मदद करो करके याचना करता है। लेकिन साईनाथ ऐसे नहीं है। साईनाथ अलौकिक गारोडी, काय तयांच्या खेळाची प्रौढी, इच्छा होता न भरता चिपड़ी, फुटानी काढ़ी लगनी तो। एक क्षण में ये साईनाथ तो अलौकिक अजूब अजूब ऐसे जादूगर है, तो प्यार से हमें नाम देते हैं, क्या लीला विग्रही है। एक क्षण में पलक झपक, एक क्षण जो लव मात्र बोलते हैं, पलक झपकते ही ऐसे अनगिनत चने सिलवटों से निकालने की वो ताकत रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, शक्ति रखते हैं। ये तो उनके क्या कहने बाबा, उनकी अगर इच्छा हुई ना, ये क्षण की भी देर न लगाते हुए ऐसे अनगिनत चने निकालेंगे वो। और ये तो उन्होंने किया है, पॉसिबल है। प्रैक्टिकली हम इधर उधर घूमते हैं, पैर दबा रहे हैं, बाबा के बैठ रहे, ये कर रहे हैं, ऊपर से न यहाँ ये जो कोट के सिलोटों में इतने दाने, वो भी 20-25, कैसे कोई इतने दूर तक इतने देर तक रख सकता है, धरे रहता है? नहीं, ये तो बाबा ने रचाई हुई ये लीला है। अभी कथे का सारांश क्या है कथा का? पर्या कथेचे सार काय, तेथेचा आपण घालू ठाय, पाचा पोटी कोणताही विषय, बाबा शिवाय शिव ने। तो क्या कहते हैं, सारांश क्या है इसका? तो हमारे पंच ज्ञानेन्द्रिय जो है, इस कथा का जो सार है, हमें इनसे क्या लेना है, इसका उद्देश्य, इसका तात्पर्य यह है कि 5 इंद्रियों के संबंध में कौन सा भी विषय हो, कौन से विषय है? 5 विषय, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। ये इसका जब आप आस्वाद लेते हैं, इसका उपभोग लेते हैं, तो पहले बाबा को याद करो और उसका आप वो विषय सुख अच्छी तरह भोग ले पाओगे। और गलत तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि बाबा को साक्षी मानकर आप कर रहे हैं।
है ना। बाबा को साक्षी पकड़कर आप उसे कर रहे हैं। ये करना, यही तो उद्देश्य है इस लीला का, यही तो सार है इस शिक्षा का। मनास देता ही शिकवण, वेळोवेळी होईल आठवण, देता घेता साई चरण अनुसंधान राहील। सभी विषय सुखों के मूल में, जड़ में बाबा ही है। इतना ही नहीं, अपितु ये विषय सुख बाबा के ही स्वरूप है। बाप रे, देता गीता साई चरण अनुसंधान राहील, बाबा ही ये सबके साक्षीभूत है, सब देख रहे हैं। हमारी कौन सी भी कृति, कौन सा भी विचार, कौन से भी आचार उनसे छुपा नहीं है। उन्हीं के माध्यम से ये घटित होता है। इतना ही नहीं, ये विचार, हमारे मन में आए विचार, ये स्वयं बाबा ही है। सदगुरु के चरणों की मन में स्थापना कर सदगुरु से हमेशा कनेक्ट रहना, कभी भी इंटरनेट उनका फेल नहीं होने देना, उनसे हमेशा भक्ति भाव से जुड़े रहना, अनुसंधानित रहना, कनेक्टेड रहना, यही हमारा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। और जो विषय सुख हम लेते हैं विधिवत, जो परमेश्वर को मंजूर है, समाज के नियमों के अधीन है, वो लेंगे, वो आप पवित्र साधनों के माध्यम से जो करेंगे, उसको बाबा हमेशा क्या करेंगे, उसको फलद्रूप कराएंगे, फलदायी कराएंगे। हे शुद्ध ब्रह्म सगुण मूर्ति, नैना समोर राहील निश्चिती, उपजेल भक्ति मुक्ति विरक्ति, परम प्राप्ति लाधेल। साई नारायण का ये जो मूल स्वरूप है, ये शुद्ध पर ब्रह्म स्वरूप, ये सगुण स्वरूप हमारे नजरों के सामने से हमेशा हटेगा नहीं, सामने से हमेशा बना रहेगा। अपने अंतरंग में अगर भक्ति है तो विरक्ति और अंत में मुक्ति, ये तो जाहिर है, वो क्रोनोलॉजी में आना ही आना है उसको, वो क्रमानुसार उसको आना ही है। और आखिरी में क्या है, परमेश्वर प्राप्ति। तो क्या लिखा है, लिखे उपजेल भक्ति मुक्ति विरक्ति और परम प्राप्ति लाभेगा। परम प्राप्ति का, परमेश्वर प्राप्त हो जाएंगे हमें। क्या होना चाहिए यहाँ पर, विषय के सुख अभी एक एक लिखा है। नयनी देखता सुंदर ध्यान, हरेल संसार भूख तहान, हर पेल ऐहिक सुखाचे भान, मन समाधान पावेल। अरे बाकी के तो याद ही नहीं आएंगे। आपके जो नेत्र जो है, जो सुख लेते हैं, वो जो विषय जो उनका जो है, वो जो देखने का रूप है ना, सुंदरता देखने का, अच्छा देखने का, वो ध्यान, ये जो सुंदरता अगर बाबा की तरफ आप लगा दो, अरे आप उधर ही आपका जो संसार का भान ही नहीं रहेगा, ब्रह्ममान हो जाओगे, विलीन हो जाओगे, तल्लीन हो जाओगे, व्यस्त हो जाओगे उसी के अंदर। संसार, आप प्यास और भूख क्या होगी, भूल जाएंगे। ऐहिक सुख तो, ये जो मटेरियलिस्टिक हम जो कंफर्ट देखते रहते हैं, वो उसका तो, उसमें आपको कोई रुचि नहीं रहेगी, निकल जाओगे उसमें से, और मन में तृप्ति समाधान मिलेगा। अब देखिए, जितने भी यहाँ महाभाग है, जितने भी आदरणीय लोग यहाँ हैं जो ये कथा को सुन रहे हैं, बाबा
हमारे जीवन में है तो कितना सुख समाधान है हमारे लिए, कितने परम भाग्यशाली हम अपने को समझते हैं। ही इज अवर मेंटर, ही इज अवर प्रोटेक्टर, ही इज अवर गाइड, ही इज अवर केयर टेकर। हम सब उसी से है, और इसलिए हमें क्या करना है, टोटल सरेंडरनेस बाबा को देना है। ये ये जो स्टैंजा है वही कहता है, हर पेल ही सुखाचे भान। उसमें ये जो भौतिक संसाधन में जुटने में हम जो लगे रहते हैं, वो उसमें रुचि ही नहीं रहेगी। वो भी नाठवे आठवू जाता, परिति आठवे जात्यावर बसता, तैसी ही चलकलीला कथिता सुदाम कथा हटवली। ऐसे अगर हम याद करने जाए तो याद नहीं आती वो भी, अरे हाँ वो फला फला वो भी कहा था, याद नहीं आती है। लेकिन वही वो स्टैंजा हम पीसने को बैठते हैं। बड़ा लुभावना वो दृश्य होता था मेरे बचपन में। मैं मेरी माँ के साथ वो पीसने जब बैठता था, या उनके ऐसे वो जो उस पे पैर पर मुंडी डाल के सोता रहता था, और वो भले सवेरे तड़के सवेरे 4 बजे वो पीसने को बैठ जाती थी। और उस वक्त वो जो पीसते हैं तेरा जात्यावरच्या ओव्या म्हणतात, वो जो गोवी है वो गाती थी। तो आप जब पीसना चालू करते हैं, आटे की चक्की चालू कर देते हैं पीसने के लिए, तो वो भी अपने आप मुंह से आ जाती है। वैसे ये चने की ये जो लीला है, ये आपको सुनाते सुनाते मुझे सुदाम, भक्त सुदामा, इसकी कथा याद आ गई। नॉर्मली अगर मुझे कथा या कोई वो भी बोले तो वो याद आती ही नहीं। लेकिन जैसे पीसने वाला वो ये इस पे पीस आटे की 1.5 घंटे में बैठेंगे तो वो याद आ जाते हैं। अभी तो छोड़ो, अभी तो क्या हुआ, सब मैकेनिकल हो गया, गलत नहीं है उसमें। लेकिन ये मौका गया बाबा के प्रति, अपने इसके प्रति बहुत अच्छे अच्छे रहती थी वो जब आप पीसते थे तो उसमें जो वो भी बहुत बड़ा अध्यात्म भरा रहता था उसमें। बहनाबाई चौधरी करके है एक महाराष्ट्र की कवियत्री, गई अभी, लेकिन उन्होंने ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कुछ उसमें लिखा रखा है। और भी बहुत सारा लोक साहित्य है उसमें, जात्यावरच्या ओव्या, तो एक बहुत बड़ा लिटरेचर है उसमें। एकदा कृष्ण सुदामा सेवित असता गुरुआश्रमा, लाकडे अनावयाचे कामा, कृष्ण बलरामा पाठविले। एक बार ये हुआ कि कृष्ण, सुदाम और बलराम, कृष्ण बलराम सुदाम ये सब क्लासमेट है। कृष्ण और बलराम तो भाई भाई भी है, लेकिन ये सब क्लासमेट है। ये ऋषि के आश्रम में, मेरे ख्याल से सांदीपनी ऋषि के आश्रम में जब ये थे, तो जो गुरु माँ है, गुरु माँ ने कृष्ण और बलराम को जंगल में जाकर लकड़ियां काटने के लिए, क्योंकि अनाज खाना बिना बनाने के लिए तो गुरु माँ का काम रहता है, तो वो काम दिया, सौंपा था उसको। तो ये दोनों भाई गए थे लकड़ियां काटने के लिए। गुरु पत्नी चिया नियोगे, कृष्ण बलराम अरण्य मार्गे निघाले, मात्र तो तयांच्या मागे सुदामा संगे पाठविला। अभी दोनों को तो भेज दिया गुरु माँ ने लकड़ी के जलाऊ लकड़ी लाने के लिए जंगल में। ये दोनों भाई निकल गए, लेकिन उनके पीछे सुदामा को भेज दिया गुरु माँ ने। गुरु माँ की आज्ञा के अनुसार सुदाम पीछे साथ में उन्होंने भेज दिया। और उसको वो क्या बोला सुदामा को, तया पासी दिदिले चने, क्षुधा लागता फिरता अरण्य, तिगाही हे भक्षण करने, गुरु पत्नी ने आज्ञा पीले। सुदामा को बोला, देख ये चने लेके जा, अब जंगल में आप लकड़ियां काटने जा रहे हो, अगर उधर भूख लगती है तो तीनों ने मिलकर ये खा लेना,
क्या बोलते हैं, थोड़ा सा आहार हो जाएगा, नाश्ता, एक छोटा सा खाना हो जाएगा आपको। भूख अगर लगी तो तीनों मिलके खा लेना। आगे चल के सुदामा गए। पुढे रानात कृष्ण भेटता, दादा तहान लागली म्हणता, फुटाण्याची वार्ता न करिता, परिसाप वदता झाला ते। आगे चलकर जब वो कृष्ण और बलराम जो लकड़ी काट रहे थे, उनको जब वो मिला, उधर उनके साथ ही था, तो कृष्ण भगवान ने बोले, यार प्यास भी लगी है, अब प्यास खाली पेट पानी न पी, कुछ खाना चाहिए, है ना। तो बोले पानी पीने के पहले कुछ खाना भी चाहिए। इसके पास चने हैं, वो कहाँ बोल रहा है, वो नहीं बोल रहा है चने। गुरु माँ ने अपने को चने दिए हैं, या बोले वो बता नहीं रहा है कि गुरु माँ ने हमें चने दिया है। अनशे पोटी पाणी न पे, मने सुदामा क्षणिक विसावे, परी न वधे हे चने खावे, कृष्ण विसावे मांडीवर। अनशे पोटी यानी पेट में अन्न का एक कण न लेते हुए, एक निवाला भी न होते हुए पानी पीना थोड़ा सा आरोग्यदायक, आरोग्य के लिए धोखा होता है, आरोग्य के लिए हानिकारक होता है। तो इसीलिए अनुशेप यानी खाली पेट पानी नहीं पीना चाहिए। इसलिए उन्होंने बोला कि हम थोड़ा सा विश्रांति लेते हैं, सुदामा ने बोला। तो लेकिन अपने पास चने वो नहीं बोल रहा है। तो कृष्ण ने सुदामा के अपने पैर पर अपना सर रखा और वो क्या लेने लगे। हाँ देखिए कितना इसका, माँ के मांडी पर वो अपना सर रख दिया, मांडी यानी वो पैर का जो है जंगा, उस पर रख लिया और वो रेस्ट लेने लगे। कृष्ण भगवान सो गए। थोड़ी सी दोपहर को अभी लकड़ियां वगैरह काट रहे थे, बलराम भी काट रहे थे, तब इतने में थोड़ा सा थक गए। तो वो अब बोले प्यास तो लगी है, लेकिन खाली पेट पानी भी नहीं पीना चाहिए। अब इसलिए बोलना चाहिए ना, मेरे पास चने अपन तीनों खाएंगे। वो कुछ नहीं बोला। अरे बोले यार खाली पेट नहीं पानी इमीडिएट पीना चाहिए, अब तू थका आया है, थोड़ा आराम करो। आराम करते कृष्ण भगवान वहां आंख लग गई उनकी, नींद लग गई उनकी। यहाँ हम 5 मिनट की विश्रांति लेते हैं। This particular stanza and this adhyay and what Pawar Kaka is telling, I can only tell the small thing to all Sai devotees. You see, basically, Sai Bhakti is essential. And once you get attraction, it will automatically happen. But you know that Virakti part, the Virakti taking place in Sai Bhakt is, according to me, whatever I have gone through, I can tell, is not a good thing for other people. That particular individual, that Virakti is extremely good, and he enjoys his life. But all other connected people, it's not a good thing, because you see, he is disinterested in all other uh, family activities, you see, and he is in a different world. His world is very blissful and very enjoyable, but that is not the case for others, you see. And this I have gone through. You see. my mother and all family have gone through. That is the only thing I can caution you. But you see what has to happen here.
will happen. And there is always uh, a good part of that also. So, but that part comes later, you see, it doesn't happen at that point of time. And therefore, this is a caution. One should keep it in mind. That is the only thing I can tell Sai devotees, all of you. You do the Sai Bhakti, but Virakti will take place and uh, life for others will be ruined. That much I can tell you, you see. But it has to happen, so it will happen. So Uh, don't worry about it, you see. uh, Yeah. yeah. Pavarka say something Virendra about ji, it. will you allow me to comment on this? Yeah, please. It is a little bit personal, but if you, No, if there is you, nothing. the This is context of these particular feelings of Virendra ji, with due respect to him, he comes from such a respectable family. साईनाथ भगवान जिसको अपना भाई मानते थे, उनके एक पुत्र है. हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, बड़े अभिमान की और गौरव की बात है. Now, what happened with this life, which I analyzed, it is my interpretation, correct me if I'm wrong. What happened is, Jyotindra ji, after his whatever life he lived with, the best period of his life in Sai Bhakti, and after physical disappearance of the Sai Baba, he became introvert. He was into self-inquiry itself. He was not talking much to anybody, but he was in his whatever related to Sai Bhakti, Sai Baba, Sai this one, that was his world. He was not active. In other words, he has given away everything into gain materialist things or materialist world. He lost all his interest in the samsara itself. That has created ill feeling in these children. That क्या है बाबा, हमारे अभी हमको जरूरत है, हमारी अपलिफ्टिंग है, हम अभी सीख रहे, पढ़ रहे, और ये ऐसा है कि कुछ हमको कुछ कंट्रीब्यूट नहीं है इनका. Slowly, that feelings has created gradually in this ज्योतिन्द्र जी, वीरेंद्र जी और अन्य कस्मान की मेरा हमारी बात तो क्या कुछ काम करे, कुछ खाए नहीं, हमारा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं इनका इसमें. It was वीरेंद्र जी's mother who was convincing, लोग बेटा आज वो इस अवस्था में है, लेकिन ये जो सब क्रिएट करके रखा है, ये जो मटेरियलिस्टिक संसाधन आपके लिए बना के रखे हैं, इन्होंने आखिरी में बनाया किसने? उन्होंने बना के रखे. आपको आपकी अपलिफ्ट में आपको परवरिश के लिए मैं हूं ना, और मैं ये सब कर रही हूं ना. बट वो क्या था कि द मैन हु गॉट टोटल 100% डिटैचमेंट विद worldly affairs, naturally it will be painful for others. Even I have gone through this, but in a different context. मेरे फादर पूरे वो व्यसनी सब थे, वो एडिक्ट थे वगैरह वगैरह. मैं डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मैंने भी ये कर लिया है, लेकिन आज वो रियलाइज होता है. वेल, Jyotindra ji has played his very well. He is my really a mentor, Jyotindra Tarkhade. Sorry, I'm emotional. He has played his well by fulfillment of all the obligations towards his family. Only the thing is, because of his bhakti, his word, he was outwardly looks like he was detached, but that was a painful to their children. Whatever the Virendra ji told now, that's really painful. But Virendra ji, you realize one thing. Whatever today you are here, whatever the material, comfortable material का जो प्रसिद्धि और आपको जो एक रुतबा, एक स्टेटस, एक जो आपका जो अभी जो कंफर्ट जोन मिला है, that originator is
Baba Sab Karkar and Jyotindra Karkar. Now you are realizing it because you have written such a nice and beautiful book on this. But I know he has passed through that era that my father is totally of no use to me. This is must have happened and it's bound to happen. We are all human beings. But my father was such a great Sai devotee that Sai Baba himself told him, Bhau, that Bhau is above of all world, top of the world. That he has realized. That's why he has narrated such a beautiful book. Thanks to you, Virendraji, for this. And I'm sorry if I have allowed in, entered into your personal emotional world. Am I right? No, you don't have to feel sorry. You see, this is the destiny. This is what has to happen. So it has all happened. You see. It happened. Yeah. And you see, one thing I realized in life, this is for side devotees actually. My saying is for side devotees. That end should be good. That is the most important thing in life, you see. End But should be good. that teaching of the Baba says same thing. You in Keshav Pradhan, Keshav Pradhan, he told the same thing. Your obligations or your duties and responsibility towards your family should not be neglected. He never inspired anyone or he never progate anyone, तुम तुम्हारा सब घर बार छोड़ो और मेरे पास आ जाओ. Not a single example you can find in history of जीवनी के बाबा की जीवनी में. अपनी जो ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो अपनी कर्तव्य भावना है अपनी फैमिली की तरफ, वो पूरी निभाओ, उसके साथ मेरी भक्ति करो. According to me, Jyotindra ji have fulfilled all his obligations towards his family, but yes, emotionally he was detached from family. That's right. Anybody has got any question about this? Or anybody has gone into same way? One thing I want to share, this is not Yeah. today's chapter, Hmm. regarding Virendraji's book. I was, I think, I was just 24 or 25 years. I was in Shirdi and Vinima gave this book to me and she Okay. said, you read this, this is very extraordinary book. So then when coming back from Shirdi in the train journey, I read this book. I completed this whole book. 1 week I could not sleep. I was so, the blessings of Baba to Tharkar family is amazing. It is something extraordinary. I felt so, I could not sleep for 1 week. This is my personal experience. What a beautiful experience. What a beautiful experience. Thank you for sharing it. Anybody else want to share something, Jayshree? Let us continue. Okay, shall I go ahead? Yes, Kaka. Yeah, we'll take the English version. Though this body is temporary, remember that this body helps you to develop the sense of gratitude and express your devotion. The body is the medium for expression of love, devotion. This journey towards devotion is even superior to the journey of for liberation. Earth earning by rightful means for prosperity of oneself and others is karma. To ensure continuity of human race, moksha, liberation, the path, purpose of the devotion is even more auspicious than those four purposes. The yoga of devotion is the highest. No other yoga techniques can be compared with it. That is the most amazing speciality of devotion. Doing seva of the teacher or doing seva of the master, having devotion at his lotus feet and revealing in the praise towards one's teacher or one's father, life of the disciples get fulfilled. If one understands the secret of gratitude towards his teacher, he will surely follow the path of devotion, knowledge, non-attachment, and help himself on the path of realization. If one differentiates between the teacher or teacher word is not correct here.
If one differentiates between the Sadguru and God, such a person, even if he reads all the scriptures and follows all rituals, will still be ignorant. We can say that he still has not understood the real nature of the God. It is like asking who is Sita, and how is she related to Rama after reading the whole Ramayana scripture. One should drop the thought of duality, and one is thinking about the master and the Lord is different. The master and the Lord are not different from each other. Each other is word, this word is also wrong. They are not different, they are one. If one performs his duty towards the master, the pure mind and word, and with a noble intention, he will be free of desires and attachment for the worldly objects. His mind will be pious and he will gain knowledge of the true self. So the lesson we learn from this is that if Baba so desires, he can manifest chickpeas or any such things. It will not take him even a moment to do such things and such wonders. A magician carries out tricks as it is his way of earning of livelihood. Such a person carries a bone in his hand and with his techniques and studies manages to produce the desirable objects from nowhere. Bhagavan Sainath is such a magician for whom this whole world is like a play. He can make thousands of chickpeas manifest if he desires so. Who am I to describe his expertism? Anyway, the moral of this whole incident is that when one is enjoying everything through any of the five senses of the organs, one must remember Baba while enjoying this subject or object of five senses. We should remember that Sai is the origin of enjoyment. In fact, that is the second nature of Sai. He knows and witnesses of everything. If you keep remembering or reminding yourself about these teachings, his teachings or these teachings, you will remember him in every moment of your life. Then the place of his lotus feet will permanently be established, and your heart and you will develop a loving relationship with Sai Baba. If this beautiful image of Sai remains in front of our eyes in all the times, we will be able to develop the qualities of devotion, non-attachment, and finally we will realize our true nature. Once you see his beautiful image, you will lose your sense of identity with this body. You will be free from the problems of the thirst and hunger. Your mind will be blissful. You will have complete satisfaction. Normally, if you try to recollect a particular prayer on a same verse, you fail to do it. But you will surely remember it when you sit near the grinding stone doing your job. Similarly, while telling these incidents about chickpeas, I recollect another story of Sudama and Lord Sri Krishna on chickpeas. Once it is so happened, when Sri Krishna and Sudama were studying and serving in their teachers, Gurukul, Krishna and Balaram were sent to fetch for the jungle from by Guruma. As per the instructions of the wife of the teacher, that is Guru Mahadevi, Krishna and Balarama went to the jungle. Sudama was also asked to accompany them. She gave some chickpeas with Sudama and asked him to share it amongst the three of them in case of they felt hungry. After coming to the jungle and after meeting Krishna, Sudama made no mention about the chickpeas he was carrying. Now, let us see what he said when Krishna mentioned that he was feeling thirsty. Sudama commented, please do not drink water on the empty stomach. Let us relax for some time. Then Krishna decided to take some rest by putting his head on the Sudama's lap. But still Sudama made no mention about the chickpeas after he had.
what he was having. आगे शुरू करते हैं. पाहून लागला कृष्णाचा डोळा, सुदाम चणे खाऊ लागला. का दादा काय वो खाता हा कसला, आवाज बदला कृष्ण सदा. ये कृष्ण की आंख, श्री कृष्ण भगवान की आंख लग गई है, वो सो गए हैं थोड़ी सी और नैप ले रहे हैं. और नैप ले रहे हैं तो सुदामा ने वो चने खोले और खाने लगे. अभी सुदामा उम्र से बड़े हैं एक्चुअली, ये दोनों छोटे हैं कृष्ण बलराम. तो कृष्ण ने पूछा, दादा वो बिग ब्रदर आप क्या खा रहे हो, ये आवाज कैसी आ रही है, मुझे जरा बोलिए. कि कुछ खाने की आवाज आ रही है, आप क्या खा रहे हैं. तो उन्होंने बोला, सुदामा जी ने, काय रे खाया हे थे, थंडीने तुझे पंक्ती थोडं थोडं ते, विष्णू सहस्त्र नाम ही मुखाते स्पष्ट उच्चारिता येईना. यानी अरे इधर क्या खाने के लिए है रे कृष्ण, ये मेरी जो दो दांत है ना, ये कपकपी भर रही है ठंडी की वजह से. विष्णु सहस्त्र नाम भी मेरे मुंह से सीधा नहीं निकल रहा है, दांत पर दांत अगर तर करते ना उसको, ठंडी में वो लगते हैं. मतलब बचपन में होता था, अभी नहीं होता है. तर करती है वो. अरे क्या इधर खाने को है, मेरी दोनों दांतों की पंक्ति एक दूसरे पे टकरा रही है और वो थर आवाज कर रही है. विष्णु सहस्त्रनाम भी मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ और स्पष्ट उच्चार मेरे मुंह से नहीं आ रहे. यहाँ क्या खाने को होगा, ठंड के मारे इधर जी जान बेजार हो रही है. ऐकून हे सुदाम्याचे उत्तर, कृष्ण साक्षी कृष्ण परात्पर, म्हणे मलाही स्वप्न खरोखर पडले बरोबर तैसेच. सुदामा दादा ने जो जवाब दिया, उसके बाद कृष्ण भगवान बोले, हाँ सही है, मुझे भी ऐसी आशय का कुछ सपना भी गिर रहा था. तो क्या था वो, एकाची वस्तू दुजा खाता, काय रे खातो ऐसे वदता, काय खाऊ काय माती तो म्हणता, वाणी तथास्तुता प्रकटली. अरे हाँ दादा, मुझे भी इसी तरह का ऐसा एक सपना अभी आया. एक आदमी के उसी के हिस्से का खाना दूसरा खा रहा था. तो जब उसको पूछा कि तू क्या खा रहा है, तो उसने बोला, क्या खाऊं, इधर माटी, इधर खाने को तो कुछ है नहीं. तो उसकी वाणी जो है, जो जो हकदार था वो खाने का, उसने बोला, तथास्तु, तेरे दिल के जैसा हो. एक आदमी की वस्तु अगर दूजा खाता है और उसको पूछा, अगर तू क्या खाता है, तो क्या खाएगा रे, इधर मट्टी है खाने को, ऐसा उसने बोला. तो उसके मुख से वाणी निकली, तथास्तु, मंगल हो, शुभ हो. अरे हे स्वप्नची बरे दादा, आपण मधविन खाल का कदा, खाता काय ही प्रश्न ही तदा, स्वप्नांच्या नादात पुसियला. लेकिन ये सपना है सिर्फ दादा, हाँ ये मैं तुम्हें सपना बोल रहा हूं, आप मेरे सिवाय कुछ खाएंगे क्या. ये मैंने आपको एक्चुअली पूछना भी नहीं चाहिए कि आप क्या खा रहे हो, वो तो सपने में था, वो सपने के इसमें मैंने पूछ लिया क्या खा रहे हो, वो वही लहर में मैंने पूछ लिया. पूर्वाश्रमी सुदाम जीला, अस्ति ठावी कृष्ण लीला, तरी हा नसता प्रमाद घडला, नसता भोगीला परिणाम. अभी सुदामा ने क्या परिणाम भुगते हैं इसके. अगर यही पूर्वाश्रम में सुदाम जी को अगर कृष्ण की लीला मालूम होती, तो कभी ऐसा हाथ से ये करते, कभी ऐसा घटित होता उनके पास से. क्योंकि उसके परिणाम है कि आगे बहुत कठिन परिणाम सुदाम जी को भुगतने पड़े, या जानते हैं कृष्ण सुदामा लीला में. तो तरी काय साधारण, 18 दारिद्र्य घन, तरी एक एकटे खाती जे जन, त्यांनी ये स्मरण ठेवावे. सुनो, बहुत बड़ी सीख है ये लीला के माध्यम से. 18 विश्व दारिद्र्य यानी परमानेंट दारिद्र्य, उनको भुगतने की सजा प्रकृति ने दी, क्योंकि दूसरे का हिस्से का खाना आप खा लिए. जो दूसरे के हिस्से का खींचकर
खा लेते हैं, उनके लिए सबक है, उनके लिए यह है लीला। उन्होंने हमेशा याद रखना है ये कितना भारी पड़ सकता है। जिसका हिस्सा है उसको देना चाहिए। अगर उस हिस्से का हम खा लेते हैं तो क्या होता है, अगले जन्म में या किसी जन्म में आपको बेइंतहा कष्ट का, गरीबी का, अन्न के सिवाय जीने का, आयुष्य जीने का जीवन आपके नसीब में आ सकता है। कृष्ण परमात्मा दयाचा सखा, ऐसा हा भक्त सुदामा सारिखा, नीतीश यत्किंचित होता पारखा, पावला धोखा संसारी। अब कृष्ण सुदामा ये कोई मामूली हस्ती नहीं है। कृष्ण भगवान के सखा है, मित्र है उनके। लेकिन एक बार उनकी नीयत खराब हो गई, नीयत में खोट आ गई और उसमें जरा सा चने के लालच में चने खा लिए, लेकिन आगे जीवन में उनको बहुत, मतलब आगे जो फ्यूचर जीवन है, आगे जन्म में नहीं, जीवन में बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा उनको। दारिद्र्य, खाने का मोहताज हो गए, कुछ भी नहीं थे। और वही कृष्ण सुनामा आगे चल के क्या हुआ, तो स्व कष्ट स्त्री कष्टार्जित, प्रेमे मुठभर पोहे अर्पित, कृष्ण होनी प्रसन्न चित्त, ऐश्वर्य तृप्त करितया। और यही कृष्ण भगवान ने आगे किया। सुदामा मिलने गए कृष्ण भगवान को, है ना, और द्वारका में, और वहां अपने श्री ने खुद के हाथ से बनाए हुए बहुत, बस इतने अंजलि भर पोहे, पोहा बोलते हैं ना, पोहा, वो पोहा लेके गए। सूखा पोहा, कुछ था नहीं था, पानी के साथ कृष्ण भगवान को उन्होंने समर्पित किया। सुदामा ने, मेरे पास कुछ भी नहीं, यह मैं लाया हूं तुम्हारे लिए। उसका नतीजा क्या हुआ, ऐश्वर्य, एक राजा के जैसा जितना भी उसके पास होना चाहिए, इतना ऐश्वर्य से सुदामा को निहाल कर दिया। कृष्ण होनी प्रसन्न चित्त, ऐश्वर्य तृप्त करितया। बहुत बड़ा ऐश्वर्य से उनको माला माल करवा दिया सुदाम जी ने, सुदामा को कृष्ण भगवान ने। आसो आता आनिक एक, वार्ता कथितो बोध प्रदायक, आदि आदि आनंद विनोद सुख, बोध प्रमुख जी अंति। खैर ये रहने देते हैं। अभी आगे एक बहुत ही विनोद के अंग से जाने वाली, महज एक चुटकुला लगेगा, ऐसी लगेगी कथा आपको, लेकिन ऐसी नहीं, बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा बोधदायक है, बहुत बड़ी शिक्षा और संस्कार हम पर करने वाली ये कथा है। वो मैं आपको अभी कहने जा रहा हूं, ऐसा हेमाडपंत जी कह रहे हैं। कोणास आवडे परमार्थ बोध, कोणास तर्क युक्तिवाद, कोणास आवडे थट्टा विनोद, आनंदी आनंद सकलांते। अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ में जो परमार्थ बोध है वो किसी को पसंद आएगा ये लीला से, किसी को इसमें लॉजिक पसंद आएगा कि क्या बोला है, बहुत अच्छा है, एंड बहुत अच्छे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और वेरी सीक्वेंस में और लॉजिकल वे से मारा है, वो क्यों रचाया है, वो किसको पसंद आएगा। किसको, किसी भक्त को इसके अंदर जो ठट्टा विनोद मस्करी जो की है वो पसंद आएगी शायद। नहीं, सबको आनंद मिलेगा इसमें, ये कथा में। हर एक कौन से पर्सपेक्टिव से आप देखते हैं, कौन सी नजर से आप देखते हैं, कौन से एंगल से उसको देखते हैं, आपको आनंद ही आएगा कि इसमें विनोद भी है, लॉजिक भी है, और वाद विवाद करने की संवाद भी है, सुसंवाद है, विवाद नहीं, और क्या है, परमार्थ बोध भी है। ही होती एक थट्टा, बाई बुआ पीटले हट्टा, साई दरबारी मादला तंटा, तुटला न बट्टा लागता।
ये कथा ऐसी हुई, एक 1.5 उम्र से भी ज्यादा, 50-55 के जो लोग होंगे, एक बाई और एक बुआ, एक नर और एक स्त्री, इनके बीच में झगड़ा, फालतू का झगड़ा खड़ा हो गया द्वारका माई के अंदर। विनोद के माध्यम से, विनोद से ही निकल गया, और उसके ऊपर वो विनोद का परिणाम, विनोद रह गया अपनी जगह, वो हो गया झगड़े में, उसका रूपांतरण हो गया। और लेकिन ये झगड़ा किसी के ऊपर कुछ भी आंच न आते हुए, किसी को भी दोषी न ठहराते हुए अपने आप मिट गया। कैसे? हम सुनते हैं। ही कथा परम सुरस, श्रोतया आनंददायी बहुवस, भक्त मांड भांडता अरस परस, हास्य रस्य केल। अरस परस यानी बस रिलैक्स में से, बात खुल के, रिलैक्स में से। श्रोते जिनको आनंद देने वाली जो कथा है, बहुत रस भरी है, रमणीय है, दिल को भाने वाली है, दिल को छू जाने वाली है। दोनों भक्त एक दूसरे को झगड़ रहे हैं, और झगड़ते झगड़ते कैसे हंसने लगे, देखिए। भक्त दामोदर घनश्याम, बाबरे दयांचे उपनाम, अन्ना चिंचनी कर टोपन नाम, प्रेम निस्सीम बाबांचे। ये जो बाबा के जो परम भक्त थे, दामोदर घनश्याम बाबरे, मैंने इनके बारे में अध्याय के शुरुआत में जो थोड़ा विवेचन किया था, वो उनका निक नेम था अन्ना साहब चिंचनीकर। बाबा के बहुत निस्सीम भक्त, अन्ना चिंचनीकर नाम से ही इनको जाना जाता था। इनकी धर्मपत्नी लक्ष्मीबाई बाबरे, अरे दोनों बाबा के परम भक्त थे। ये शिरडी में जाके रह गए थे बहुत दिन तक। अन्ना साहब की जो धर्मपत्नी है, कुछ दिन के बाद अपने गांव में जाके वहां उनका देहांत हो गया। आज भी उनका वो साई मंदिर उधर है, बहुत बढ़िया साई मंदिर है। और अन्ना भी अपने गांव में रहते हुए वहीं वो परलोक सिधारे। उन्होंने अपने पश्चात अपनी जितनी भी मूवेबल इमूवेबल जो भी प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी बड़े प्रेम भाव से साई बाबा संस्थान के खर्चे के लिए दान कर दी थी। ये जो अर्पण पत्र उन्होंने बनाया था, श्री साई लीला मासिक जो है, इसमें 1845 शके 1845 का जो अंक है, उसके 12वें अंक में इसका मैं जो ये दान पत्र दिया है, उसका विवेचन या उसका डिटेल आया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। मैं अभ्यास के लिए आपको बोला। स्वभाव मोठा खरमरीत, कोणाची न धरित समृवत, उघड बोलणे वीता हिताहित पाहती न। अब किसी की भी बिरबान नहीं रखते थे, वो बहुत स्पष्ट स्वरूप था उनका। वो उसका जो भी वो बोलेंगे, उसके परिणाम के भी वो परवाह नहीं करते थे। विदाउट थिंकिंग ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इट, वो बोल देते थे। जो है स्पष्ट रूप से, गलत नहीं बोलते थे, जो है वो बोलते थे। उसमें अपना हित है, नहीं तो सामने वाला दुखी हो जाएगा, अपने प्रतिशोध लेगा वगैरह, ऐसी भावना उनके दिमाग में कभी आती ही नहीं थी। उसमें अपना नुकसान होने वाला है, ये भी उनको समझ में नहीं आता था। वो समझ में आता होगा, लेकिन उसकी परवाह नहीं करते थे उनको। इसीलिए सामने वाले को जो शब्द नहीं भाएंगे, उसको पसंद नहीं आएगा, शब्दों में भी बोल देते थे। कड़क स्पष्ट भूमिका। वृत्ती अन्नांची जितकी कडक, तितकीच सालस आणि सात्विका। लेकिन ये इनका स्वभाव धर्म ऐसा स्पष्ट रूप का सीधा था, जो भी है वो फटाक से बोलेंगे, आगे पीछे कुछ नहीं रखे, दिल में एक, ओठों में एक और पेट में एक, ऐसा कभी नहीं रहता था उनका। लेकिन ये शुद्ध निर्मल भाव के, निर्मल स्वभाव के थे, निर्मल मन के थे, बहुत ही सीधे सरल व्यक्तिमत्व थे। उनको ये जो पॉलिटिकल गेम्स और एक्सचेंज और झांसा देना और झांसा फेंकना, ऐसा कुछ भी नहीं आता था उनको।
और माथा तो समझ लो जैसी बस लाश की हुई बंदूक है, हार से जब कैसा बार उड़ेगा पता नहीं, ठॉम उड़ा देंगे। इतना मुंह तो उनका कड़वा था एकदम, जरा भी तो आग लगा उनको, शुरू हो गए। शीघ्र को पीते, लेकिन वृत्ति बहुत सादी सरल थी, उनको गलत कोई भी पसंद आता ही नहीं था। नशा चिंचनीकर को अगर किसी के बारे में कुछ बोल दिया तो फिर तो फैसी डाल देते थे, फिर गया काम से वो सामने वाला। सकळ कामी तडका फडकी, उधारीची ना वार्ता ठाऊकी, नजरी कुणाची भिडभाड की, रोकटुकी व्यवहार। हाँ, कोई काम करना है तो वो बैठेंगे नहीं, इमीडिएटली उठेंगे, काम चालू करेंगे। इसमें आज करेंगे, कल करेंगे, टाल देंगे, ऐसा उधारी की बातें नहीं थी उनके पास। करना है अभी करना है, चलो अभी कर लेते हैं। और उसके बारे में कुछ की वो भिड़भाड़ भी नहीं रखते थे, किसी का वो मतलब लिहाज भी नहीं करते थे वो, एकदम रोक ठोक सीधा व्यवहार, सीधा स्वभाव। अब शुरू में मैंने कहा था कि थोड़ा सा ये मेरे जैसे ही है, ये दोष बोलो या गुण बोलो, जो भी बोलो, लेकिन ये मुझ में है, मैं कबूल करता हूं। उसमें मेरा बड़ा नुकसान भी कभी कभी हुआ होगा, लेकिन स्पष्ट और सरल बोलना ये स्वभाव धर्म है। पेरी धरवेल विस्तवहाती, अन्ना तया उर्णी प्रखराती, परीही निष्कपट स्वभाव जाती, तेरे से प्रीति बाबाजी। एक बार कोयले का जलता हुआ अंगार हाथ में ले सकते हो, लेकिन अन्ना की जो जो तामस वृत्ति है वो आप झेल नहीं पाएंगे। लेकिन बड़े ही सच्चे स्वभाव के, स्वच्छ दिल के, कपटी नहीं, कारस्थानी नहीं। वो कौन से, वो क्या नाम उनका, शकुनी मामा, ऐसे नहीं, एकदम सीधा सरल सादा स्वभाव, छिक्के पंजे नहीं आते, झांसा देना नहीं आता, है वो है मुंह पर। इसीलिए बाबा को बड़े प्रीति प्यार था उनके ऊपर। ये सच्चा है, सच्चा इसीलिए स्पष्ट बोलता है, सच्चा नहीं होगा तो बोलेगा नहीं। असेच एकदा दोन प्रहरी, मशिदीत भर दरबारी, वाम हस्त कठड्यावरी, बैसली स्वारी बाबांची। एक शिरडी के द्वारका माई में वो जो बाबा के पास एक कटारा था, देखो ऐसा, वो उसके ऊपर ऐसा टेक कर बाबा ऐसे बैठे थे। बाबा की वो पोज है ना द्वारका माई में बैठी हुई, उसके हिसाब से बाबा बैठे होते रिलैक्स होकर। दोपहर के तो दो दो यानी 12 से लेके 3 बजे का प्रहर था। मस्जिद माई में दरबार भरा हुआ था। 2 बजे के बाद 12 की आरती होती थी, लोग खाना खाने चले जाते थे, फिर खाना खाने के बाद आराम अंदाजन 2 बजे वो दरबार चालू हो जाता था। लोग आते थे, बाबा के हाथ पैर दबाते थे, उसके पास साथ बैठते थे, कुछ काम करते थे, या बाबा का जो सत्र में जो ज्ञान मिलता था वो ज्ञान ग्रहण कर लेते थे। बाबा पाहती तटस्थपणे, नकळत लावित भक्तांची भांडणे, संपता रागावणीवर उसने उभया समजावणी अखेर। बाबा भी एक थर्ड पार्टी के हिसाब से बिल्कुल इम्पार्शल, और उसमें भाग न लेते हुए, ये जो भक्तगण जो आपस में जो बात करते थे, एक बड़ी तटस्थता से अलिप्त होकर देखते थे। लेकिन कुछ ऐसी बात करेंगे कि दोनों के झगड़े लग जाएंगे, और एक दोनों का रूठना या बोलना या झगड़ा करना ये खत्म होने के बाद दोनों को भी समझा देते थे, और उनका दिल जमाई हो जाती थी उसमें। ये हमेशा का अक्सर बाबा ये करते थे। बाबा कोणी बाबांची कुसदाबित, कोणी पाद संवाहन करीत, कोणी पाठपोट चेपित, सेवा करीत ये रीती। मशीद भाई में बाबा की सेवा
करते हुए कोई लोग बैठते थे, कोई बाबा की कमर दबा के देते थे, कुछ बदन दबा के देते थे, कुछ सीना दबा के देते थे, कुछ हाथ पैर दबा के देते थे, कोई पाठ पाठ और पीठ और ये दबा के देते थे। ये चलता था। एक 5 मिनट में मैं आया, 5 मिनट प्लीज आपस में डिस्कस कीजिए, 5 मिनट में अनअवॉइडेबल है। Anna Chintankar, yeah, Anna Chintankar is from Chinchini, and if you have read my book, my place is Yeah, my house is at Vangaon. So that there Power Kaka is back. Tell some small, and then Power Kaka can take over. See, he is the Yeah. one who had bought the. He has bought actually. Anna Chintankar bought the chowdi. You know, he bought the chowdi and handed over the papers to Baba and told him that this is your place. Because Baba was staying in masjid, you see, and he could have been driven by any time by the British guards and whatnot. Of course, it didn't happen. Yes. So Anna Chintankar bought the chowdi and gave it to Baba and told him that this is your place and nobody can drive you out from here. So that is a great work of Anna Chintankar. You see. It is written there on the stone, you know, the plaque is there on chowdi. If you see, it is written there. I think Power Kaka can tell in detail, you see. Anna Chintankar, really great devotee of Baba. Very straight person, very great devotee. He purchased actually from the villagers. That was a common place. That is a dilapidated, totally demolished, almost demolished. He took it. Only the thing is, I'm not able to understand the. It is written there that shake is not matching with Baba's era. That is after Baba's demise. He must have done it. I don't know. Means that if you see the shake, which is, you know, that renovated the Damodar Ghanshyam Babare, he has written that shake, it is not getting with Baba left in 1918, but this comes after Baba. So that is that I'm not able to make it out whether it is a mistake or something, but it is very true that he purchased it, he renovated it, rather reconstructed it, not renovated, reconstructed it. And that was given by him. To very, very great devotee, but very kind-hearted, but straightforward person. He will not buy any nuisance. That is there. Baba Bad Brahmachari, Urdhvarete Shuddhachari, Urdhvareta. ऊर्ध्वरेता यानी जिसका रेत वीर्य जमीन पर नहीं गिरता है, यानी नीचे की तरफ नहीं गिरता है। हनुमान जी इस श्रृंखला के है कि जिनमें बाल ब्रह्मचारी है, उनका जो वीर्य रेतन यानी जो उनका बीज है वो आकाश में उड़ जाता है, यानी वो निष्ठ होता है, उससे पुनः कभी प्रजाति या रिप्रोडक्शन के लिए वो काम नहीं आता है। उनका जो लिंग होता है यही, यानी कैसा होता है, फॉर नो यूटिलाइजेशन, नो यूज टू द प्रकृति। बाल ब्रह्मचारी ऊर्ध्व रहते हैं, जिनका वीर्य स्खलन ये ऊर्ध्व ऊपर उड़ जाता है, आकाश में नष्ट हो जाता है, उसको शुद्ध आचारी, शुद्ध आचार के रहते हैं। कभी स्त्री का उन्हें क्या बोलते समागम, कभी इनके साथ कभी सामने आते भी नहीं है, हुआ ही नहीं है। करु देत सेवा चाकरी नरे नारी समझता। अब उसमें क्या होता है, अब ये बहुत इट इज रिलेटेड टू द साइंस। जो इंद्रिय निग्रह है, जो जिनेंद्र है, वो ही कर सकता है। आपको पर नारी का या इसके ऊपर अगर कुछ स्पर्श होता है हमें, तो विषय सुख की भावनाएं उद्दीपित हो जाती है। अगर आपके दिमाग में वो भावना आती है तो
फिर आपका शरीर और आपके जो अवयव है उस हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं। ये इंद्रिय पर नियमन करना, उस पर उसका दमन करके उसका कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। इसीलिए तो भगवान महावीर को जिनेंद्र बोला है। मुनि जी होते हैं, उनका इस पर कंट्रोल होता है पूरा। इंद्रिय को उन्होंने पूरा काबू में लाया हुआ रहता है। बाबा बाल ब्रह्मचारी थे, कभी उनको श्री सुख श्री स्पर्श का मतलब वो ज्ञानी नहीं था, उनको तो ऊर्ध्वरे थे, शुद्ध आचारवान थे। इसलिए उनके शरीर को दबाने के लिए, पैर हाथ पे दबाने के लिए, उनको सेवा करने के लिए नर नारी दोनों भी काम कर सकते थे। वो दोनों भी खुले दिल से बाबा की सेवा कर सकते थे। अन्ना बाहेर वो नवेराहती हळू हळू वाम हस्तदाभती, तो उजवे बाजूची परिस्थिति स्वस्थ चित्ती ऐकावी। अब इसमें हुआ ये कि वो जो कटरा है, वो कटरा है ना, उसके अंदर बाबा बैठे हुए हैं। अंदर लेफ्ट साइड बाबा के दाहिने साइड में कुछ महिला वर्ग बैठा हुआ है। अन्ना बाहर से है, बाहर बैठे हुए हैं, और बाहर से वो ऐसा औंधा खड़ा रहते हैं। वहां खड़ा रह के बाबा का जो लेफ्ट हैंड है वो दबा रहे थे। बाबा ने ऐसा रखा हुआ था ना, ऊपर खड़ा रखे बाबा को दबा रहे थे। तो उजवे बाजूची परिस्थिति स्वस्थ चित्ती ऐकावी। और राइट साइड में क्या था वो अभी सुनिए आप क्या होता है। तिकडे होती एक बाई अनन्य भक्त बाबांचे पायी, बाबा जी से म्हणत आई मावशी बाई जनलोक। बाबा जिनको मां करके पुकारते थे। ये भी बड़ा प्यारा सा लुभावना व्यक्तिमत्व है साई सच्चरित में। कौजल की मौसी, बाकी के सब लोग मौसी बोलते थे। मौसी ये जो रिलेशन है ना, मौसी यानी माँ जैसी, मासी, मासी यानी माँ जैसी, वो मासी। ये सब जन उनको मासी बोलते थे। माँ बाबा उनको माँ बोलते थे, आई माँ बोलते थे उनको। विनोदाई कौजल की उनका नाम। बाबा उनको माँ बोलते थे और अन्य भक्तगण उनको मौसी बाई यानी मासी बाई, मासी जी बोलते थे। मावशी बाई म्हणत सर्व, वेणुताई मूळ नाव, कौजलगी हे आडनाव, अनुपम भाव साईपदी। परम भक्त, हार्डकोर भक्त बाबा की। उनका सरनेम कौजलगी था, नाम था वेणुताई, और वेणु मावशी करके सब लोग उनको पुकारते थे, यही नाम से उनको जाना जाता था। अण्णाची उलटली पन्नाशी, अण्णांची उलटली पन्नाशी, तोंडात नव्हती बत्तीशी, पोक्त वयस्कर ती मावशी, तंटाऊ 82 उद्भवला। अभी देखिए बाबा बैठे हुए कटरे पे खड़े हैं, ऐसे बैठे हुए, आपको शुरू दृश्य सामने आ रहा है। बाहर के से वाम हस्त जो है ये दबा रहे, वो इस एक्शन होगी ना, और राइट साइड में अंदर के साइड से मौसी बाई बैठी है, और वो भी बाबा का राइट हैंड दबा रही है, राइट साइड दबा रही है ना। अभी उसमें ये दोनों की भी उम्र की बात करो तो अन्ना उम्र की 50 साल गुजर गए हैं, उनके 50 साल की ऊपर की उम्र है। मुंह में उनका क्या नहीं है, दांत तो कुछ भी नहीं थे। अन्ना का फोटो देखो आप, पुराने जो टिपिकल बूढ़े रहते हैं ना, दांत न रहने वाले मुंह में, ऐसा है। तो 32 यानी अंदर के पूरे 32 दांत टूट गए थे उनको। और वो जो मौसी थी, कौजल की मौसी, वो भी लगभग वही उम्र की 50 के ऊपर, 50 के ऊपर हो गई थी। लेकिन इन दोनों के बीच में झगड़ा लग गया। अब मौसी जो है ना, थोड़ी मस्करी विनोद करने वाली थी। मौसी वो लाइटली लेती थी पूरा। अन्ना सह कुटुंब से करीत सेवा, आई होती विगत धवा यानी विधवा, वो विधवा थी। अन्ना अपने धर्मपत्नी लक्ष्मी देवी के साथ ही उधर रहते थे, लक्ष्मी माँ बाई के साथ में। वो सहकुटुंब शिरडी में
बाबा के सेवा में लगे रहते थे। लेकिन ये कौजल की मौसी जो है ये विधवा थी। बाबा के जो पेट दबाते हुए, कुछ यानी ये जो साइड बरगड़ी ये दबाते हुए वो ऐसा वो आवाज आता है ना, वैसा उसको श्वास आता था, वो कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। नावरे निश्वास थी, श्वास कुछ आप दबाते दबाते आवाज निकालते ना। और बाबा का वो परब्रह्म का शरीर है, कितना दबाओ क्या दबाओ, उसकी कथा आगे आएगी। वो मौसी भाई बहुत प्रेमलता से बाबा की कूस, ये बरगड़ी, पैर ऐसा पूरा दबा रही थी। और दूसरा लेफ्ट साइड तो इनको जागीरी दी हुई थी, अन्ना को वो कटोरी के बाहर से ऐसा दबाते थे। अब उनका भी मुंह सामने आ रहा है और कौजल की मौसी का भी मुंह सामने आ रहा है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को टकरा रहे। श्री सेवेशी सबळ मावशीबाई मनाची निर्मळ, उभय हस्ती घालून पिळ मांडिली मळणी पोटाची। आप उन्होंने क्या की मालूम है? पेट, अब देखियो कैसे बेरे बेरे, दोनों हाथ ऐसा ऐसा मुट्ठी बनाना और बाबा की पेट पर रगड़ रही थी वो ऐसा उसको बोलते हैं ना, इसको पीठ मिल बोलते हैं, ऐसा दबा दबा के उसको क्या कर रही थी, रगड़ रही थी, सही में रगड़ रही थी, पेट की मसाज कर रही थी पेट में। पाठी मागुने निर्णावेरी धरून बाबास दोही करी, दाब दाबुनी घुसळण करी जैसी डोरी डेरी ताकाची। बाबा के पीठ पे बैठ के, बाबा की पीठ के साइड पे बाबा की जो धोती बांधने की जो गांठ होती है ना, इधर काटते हैं, ऐसा पकड़ पकड़ के पीछे से ऐसा रगड़ रही थी जोर जोर से, हाथ में ऐसा मसल रही थी, पूरे मसल रही थी वो पूरा कंप्लीट। यानी वो जो घड़ा होता है, घड़ा में छाछ अपन कैसे घुसलते हैं, उस हिसाब से वो पूरा घुसल रही थी वहां। अरे कंप्लीट पेट कर पूरा ढीले कर दिए, बदन पूरा स्नायु ढीले कर दिए थे उसने। साई नामी लावणी लय मावशीबाई दाबी निर्णय निर्भय, बाबा ही ने करित हाय उय वाटे रामय जनुतया। अभी इतना सब बाकी का होता है, अपने को सहन होता है, लेकिन बाबा के शरीर को कुछ भी नहीं होता था। वो हाय कोई दुख रहा है ऐसा मत करो, ऐसा कुछ नहीं, शांति से तुमको जैसी सेवा करनी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये मौका दे रहे हैं। बाकी परब्रह्म साईनाथ का जो योगी राज है उसमें कैसी वेदना होने वाली है शरीर को। दाबण्याची विलक्षण परी पोट पाठ सपाट करी, प्रेमेची ती परी अवसरी दयांतरी उपजवी। और इतना उसका वो रगड़ने का, एक तो मौसी भाई जरा थोड़ी सी जरा मोटी सी वगैरह थी, हाथ में ऐसा रगड़ रगड़ के पेट को ऐसा मसल रही है, पैसे ये कर रही है, देखने वाले को भी बड़ा आश्चर्य होता था, दया आती थी, अरे क्या कर रही है, इतना तो बात है क्या कभी। हाँ, कोई नस बीस टूट जाएगी, कोई हट जाएगी, बाबा को क्षति पहुंचेगी, नहीं, उसको तो पूरा मसाज करना है, फुल बॉडी मसाज करना है, बाबा का करना है सबके सामने। उसको दूसरा एक ही लक्ष्य है, बाबा की सेवा, निर्मल भाव से बाबा की सेवा, और बाबा को भक्तों की सेवा का स्वीकार करना। वो उनके शरीर पे कुछ फर्क नहीं पड़ता था। योगी की शरीर को क्या फर्क हो सकता है। साईचे हे निष्कपट प्रेम देवनी घेती सेवा अनुत्तम, की हे निज स्मरण अविश्रम घडो हो क्षेम भक्तास। साई भगवंत अपने निरागस निरामय निष्कपट भाव से भक्ति करने की, सेवा करने का मौका भक्तों को देते थे। उनसे बहुत अत्युत्तम सेवा करके लेते। देखो ना बाबूजी शिंदे, जीवन के आगे तो वो पट्टियां बांधते रहता था कागज हाथ को। उनका इसमें बाबा का क्या स्वार्थ है? वो भक्तों को सेवा का मौका देकर उनका निज कल्याण हो, उनका शुभ हो, उनका उद्धार हो, यही तो उद्देश्य रहता था बाबा का। गढ़ो हे क्षेम भक्तास, भक्तों का क्षेम अच्छा हो, उनका कल्याण हो। आपरी तपश्चर्या ती किती जेणे लाघावी ही संत संगती, परी साईच दिनवत्सल निश्चिती उपेक्षित ना भक्ता ते।
अपनी पूर्व पुण्याई, अपना पूर्व संचित, वो कितना सा होगा। इसी की वजह से आज हमें सत्संग करने का मौका मिल रहा है। साईनाथ भगवान के सत्संग का लाभ हमें मिल रहा है। जेने लाधावी ही संत संगति, संतों का समागम, संतों का सानिध्य हमें मिलने का, संतों का सत्संग करने का जो हमें मौका मिलता है, वो हमारे पूर्व सुकृत, पूर्व संचित, पूर्व फल के परिणति है। ये एक मानो कहो तो ये अपना, इसका क्रेडिट हमें नहीं जाता है। हमारा होगा कितना, हो कि कितना होगा, जो पुण्य संचय, पुण्य फल, पूर्व सुकृत कितना होगा, बहुत मामूली इतना सा होगा। लेकिन माँ बाबा तो उसके कई गुना हमें ज्यादा देते हैं। ये मौका दिया है शायद से कि ये श्रृंखला चलाने का, ये मालिका चलाने का, तो इसमें जरूर हमसे ज्यादा साई भगवान का एक छिपा एजेंडा है, ये हिडन एजेंडा है। ये उनका अकारण कारुण्य है। बिना वजह वो हम पर करुणा का वर्षा कर रहे हैं, करुणा की, दया भाव की वर्षा कर रहे हैं। हमारे दया की खातिर बाबा ये सब करवाते हैं। तो हमारा इतना नसीब कहाँ अच्छा कि इतने अच्छे सुनहरे मौके हमें मिले। ये तो मर्सी विदाउट रीजन, ये बाबा अकारण, न कारण, कोई वजह न होते हुए बताई हुई हमें हम पर बताई हुई है करुणा है। बाबा भी भक्तों की अपेक्षा नहीं करते थे। बस जितना उसको करना है करने दो, उसके जितने पाप भोग खत्म करने, मुझे कर्म भोग खत्म करने दो। बाबा भक्त चाहे वैसी सेवा कर लेते थे। 111 आज हम खत्म करते हैं। अगले सप्ताह में 24 खत्म हो जाएगा और 25वें अध्याय चालू हो जाएगा। इसका इंग्लिश वर्जन हम देखेंगे बाद में। आज का सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं।